Now let's begin the textual exercise of the chapter number 10. First question is from MCQ. Which Sikh Guru encouraged the Sikhs to transform themselves into a military brotherhood? The correct answer is Guru Gobind Singh. Second question is, who was the first Nawab of Awadh? The correct answer is Saadat Khan. Okay. The third question is, the Kohinoor diamond and the peacock throne were looted by. The correct answer is Nadir Shah. Fourth question, Asaf Jah was the founder of the independent state of Hyderabad. The correct answer is Hyderabad. Question number 5. Which military tactic adopted by the Marathas proved successful against the Mughals? मीन्स क्या मिलिट्री टैक्टिक्स उन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए अपनाई थी? तो दैट वेयर द करेक्ट आंसर इज गुरिल्ला युद्ध या गुरिल्ला वारफेयर. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. State whether the following statements are true or false and rewrite the incorrect statements to correct them. The correct answer. You have to rewrite the correct answer. Aurangzeb was the last Mughal. It is false. Aurangzeb had many successors who were weak. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि औरंगजेब वॉज नॉट द लास्ट मुगल. मेनी मुगल्स रूलर केम बट दैट वेयर वीक. क्वेश्चन नंबर 2. द सिक्स फॉर्म्ड अ सेपरेट स्टेट अंडर गुरु गोविंद सिंह. इट इज फॉल्स. The Sikhs became the Khalsa under Guru Gobind Singh and a state under Maharaja Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh ने फाउंड किया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. बंदा बहादुर fought the Mughals for 20 years. It is false. बंदा बहादुर fought against Mughals for 8 years. ठीक है, 20 years नहीं, 8 years. क्वेश्चन नंबर 4. The Marathas faced Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat. It is true. Afghani leader Ahmad Shah Abdali. The third battle of Panipat was held the Marathas and the Ahmad Shah Abdali. Now come to the question number 3. Answer the following in one sentence. Question number 1. What did Awadh, Bengal and Hyderabad have in common? Just see. Awadh, Bengal and Hyderabad rose as independent states after the Mughal emperor became weak and the Nawab should assert their independence. ये तीनों ऐसे स्टेट्स थे जो कि मुगल एम्परर के वीक होने के बाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स में अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड जयपुर डेवलप अंडर द राजपूत? द राजपूत रूलर सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड जयपुर, one of the finest planned cities of India and the capital of the present day state of राजस्थान. ठीक है, राजपूत रूलर सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड जयपुर. क्वेश्चन नंबर 3. Do you think Bengal had an efficient administrative system? The Nawab of Bengal, the answer is the Nawab of Bengal took a number of steps for efficient administration of Bengal in the terms of
restructuring the administration, effectively tackling corrupt and inefficient officials, encouraging the growth of agriculture, trade and industry, and regularizing the collection of revenue. ये जो बंगाल के जो नवाब हुए तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली चलाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवली वर्क हो, करप्शन दूर हो, या करप्शन को टैकल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर के ग्रोथ पर ज़्यादा जोर दिया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, रेगुलराइजिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन पर रेगुलराइज हो उस पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। What was the Maharaja Ranjit Singh's contribution to the development of Sikh regional power? सिख रीजनल पावर में महाराजा रंजीत सिंह का क्या योगदान था? तो यहाँ पर आपको लिखना है, सीजिंग लाहौर इन 1799 एंड अमृतसर इन 1802, रंजीत सिंह एस्टैब्लिश्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ऑफ द पीरियड। है ना, लाहौर और अमृतसर को उन्होंने सीज करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम उस समय सेटअप की, स्टैब्लिश की। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स टेकन बाय द नवाब ऑफ बंगाल। अभी हमने देखा कि कैसे एफिशिएंटली अपना वर्क करने के लिए नवाब ऑफ बंगाल ने क्या क्या स्टेप्स लिए, वही इस यहाँ पर आपको लिखना है, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में लिखना है कि क्या स्टेप्स उठाएं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स टेकन बाय द नवाब्स ऑफ बंगाल। फर्स्ट, रीस्ट्रक्चरिंग of the administration, tackling corrupt and inefficient officials, encouraging the growth of agriculture, trade and industry, regularizing the collection of revenue। इन सारी बातों पर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलाने पर नवाब ने जोर दिया। Now come to the question number 2। Write a short note on शिवाजी। It is very important, आप इसको ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट ऑफ शिवाजी, इसमें क्या लिखना है। देखो, शिवाजी वॉज बॉर्न, शिवाजी के बारे में लिखना है, किस तरह से उसने मराठों को इकट्ठा किया, किस तरह से गोरिल्ला टेक्निक अपनाकर नाको चने चबा दिया था मुगलों का। हाँ, मतलब उन मुगलों की बड़ी सेना के सामने छोटी सी शिवाजी की सेना ने बिल्कुल बहुत ब्रेवरी फाइट किया। तो यहाँ पर हमें थोड़ा उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी लिखना है। ठीक है, शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627 टू एन ऑफिशियल एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर, साहजी भोसले। He learned the art of administration and guerrilla warfare under the guardianship of Dadaji Kondadeva। Shivaji successfully dealt with the Mughals by passing their main forts and attacking their cities and supply lines। किस तरह से गोरिल्ला युद्ध में बहुत महारत थे कि किस तरह से लोग के ऊपर वो अटैक करते थे सडनली, फिर जंगलों के पीछे छिप जाते थे, इस तरह से। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति, सॉवरेन किंग, इन 1674 इन अ सेरेमनी ऑफ रायगढ़। उनको छत्रपति का इस जो टाइटल दिया गया 1674 में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Examine the land revenue administration of the Marathas। Land revenue administration of the Marathas क्या था? Land revenue was the main source of income for the Maratha state। अब ये किसी भी स्टेट के लिए लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ही जो है इम्पॉर्टेंट होता है, आय का एक साधन होता है वो, और उसके अनुसार ही डेवलपमेंट हो सकता है।
तो द असेसमेंट ऑफ लैंड वॉज डन रेगुलरली एंड लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड आफ्टर अ प्रॉपर सर्वे करके लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया गया. इट वॉज कंटीजेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड इट्स यील्ड. और ये जो लैंड रेवेन्यू जो फिक्स किया गया कि कितना प्रतिशत देना, वो उस लैंड की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता था. ठीक है. 2 kinds of taxes were levied on the मुगलई लैंड्स, चौथ एंड सरदेशमुखी. जो मुगलई लैंड था उसमें से 2% टैक्सेस लिए जाते थे. चौथ वॉज 1/4 ऑफ द यील्ड ऑफ द टेरिटरी. और चौथ क्या था? 1/4 ऑफ द यील्ड. जो भी आमदनी होगी मतलब उपजाऊ होगा या उपज होगी उसका 1/4 उसको टेरिटरी को देना पड़ेगा. फिर सरदेशमुखी वॉज 1/10 ऑफ द यील्ड. उपज का 1/10 सरदेशमुखी. तो ये 2 तरह के कर थे जो मराठों ने लगाए थे. इन द स्वराज्य लैंड्स ईच फार्मर पे 2/5 ऑफ हिज प्रोड्यूस. और जो स्वराज्य लैंड था, जो मुगलई लैंड में जो क्या लगे हुए थे? चौथ एंड सरदेशमुखी. और स्वराज्य लैंड में ईच फार्मर पे 2/5 ऑफ हिज प्रोड्यूस टू द स्टेट एज अ टैक्स आइदर इन कैश और काइंड. मीन्स यहाँ पर जो भी उपज होती थी उसका 2/5 प्रोड्यूस का देना पड़ता था एज ए टैक्स. या तो उसको कैश में दे या तो उसको काइंड मीन्स वस्तु के रूप में दे. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द मुगल नॉबल्स बिकम सो पावरफुल दैट they contribute to the downfall of the Mughal Empire? How did the policies of Aurangzeb contribute to the decline? देखो, द मुगल नॉवेल्स बिकेम पावरफुल. कैसे मुगल नॉवेल्स पावरफुल होते गए? एज द जागिर्स बिकेम हेरिडिटरी. जैसे जैसे पहले जागिर हेरिडिटरी नहीं थी, लेकिन जो मुगल नॉवेल जब पावरफुल होने लगे, जागिर जो होती थी वो हेरिडिटरी होने लगी. विच लेड टू करप्शन एंड फैक्शनलिज्म. अब ये करप्शन को काफ़ी बढ़ावा मिला इससे. द मोर पावरफुल सूबेदार सच एज दोज ऑफ हैदराबाद एंड बंगाल वेर एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्परर. अब वो जो सेंट्रल का जो कंट्रोल होता था उससे फ्री होने लगे मुगल के बंगाल के और हैदराबाद के. औरंगजेब्स रिजिड रिलीजियस पॉलिसी लेड टू सीरियस रिवॉल्ट्स ऑफ द राजपूत्स. औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी, वो जजिया कर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि लोगों को एकदम उसके खिलाफ रिवॉल्ट करने पर मजबूर कर दिया. राजपूत ने, सिख्स ने, जाट्स ने एंड द सतनामीज ने. Moreover, he spent the last years of his reign in the south fighting the Marathas at the cost of the northern part of his empire. तो वो उसका जो लास्ट टाइम था वो लगातार मराठाओं के साथ युद्ध के साथ ही में बीता, जिसके कारण उनके जो नॉर्थ के कुछ पार्ट उसके हाथ से छूटते गए. तो इस तरह से जो इंडिपेंडेंट किंगडम धीरे धीरे बनने लगे. नाउ कम टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल के आंसर क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रीज़न, क्या डिक्लाइन, उसके पतन का क्या कारण था. तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज the reason for the decline of the Mughal Empire. First, successor of Aurangzeb were all weak and incompetent, ठीक है, and not managers use empire. Second, the cost of administration such as vast empire was huge and weak successor could not manage it. Third is Aurangzeb's rigid religious policy led to serious revolts by Rajput. Fourth, the powerful nobles sought to control the administration and in some cases also declared themselves independent. उनको चाहिए होता जो पावरफुल नॉबल थे, जो दरबार में जो पावरफुल नॉबल्स होते थे, उनको एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल चाहिए होता था और इस तरह धीरे धीरे वो अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे. क्वेश्चन नंबर 2.
Describe the establishment of Sikh regional power. The establishment of Sikh regional power. तो यहाँ पर क्या लिखना है, किस तरह से सिख रीजनल पावर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. तो गुरु गोविंद सिंह 1666 to 1708 तक उनका रिजिम रहता. 10th सिख गुरु ऑर्गेनाइज द सिख्स इनटू ए खालसा और मिलिट्री ब्रदर. मतलब उन्होंने सारे सिख्स को ऑर्गेनाइज किया, मिलिट्री brotherhood, and fought against the Mughals and the neighboring hills states. फिर उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द रेन ऑफ बहादुर शाह वन द सिक्स इमर्ज एज अ पावरफुल ग्रुप. और फिर ये पावरफुल ग्रुप बनते गए अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर हु फॉट द मुगल्स 8 years. लगातार 8 years तक लड़ते रहा. After his death, the Sikhs organized themselves into 12 mills or group. 12 group में इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, which were later organized into a single force by a महाराजा रंजीत सिंह. और फिर बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इनको पूरे को सबको एक इसमें ऑर्गेनाइज किया. फिर सीजिंग लाहौर in 1799 and अमृतसर in 1802, रंजीत सिंह established one of the strongest kingdom of that period. ठीक है, मिडिवल पीरियड में. इस तरह से पहले गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखों को इकट्ठा कर खालसा और मिलिट्री ब्रदरहुड का इस्टेब्लिश किया, जो लगातार मुग़लों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते रहे. फिर उसके बाद बहादुर शाह वन के लिए बंदा बहादुर हु फॉट अगेंस्ट 8 years. फिर उसके बाद रंजीत सिंह ने पूरे 12 ग्रुप्स को सिखों को इकट्ठा किया. और फिर बाद में अमृतसर और लाहौर में कोई सीज कर सिख किंगडम की नींव डाली, इस्टेब्लिश किया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वाज द स्टेट ऑफ हैदराबाद established? Now let's see the answer. Establishment of the state of Hyderabad. Nizam-ul-Mulk Asif Shah was a powerful Mughal noble in the court of Farrukhsiyar and Muhammad Shah. Initially, he was entrusted with the governorship of Awadh and later given charge of the Deccan. पहले उनको जो गवर्नरशिप अवध का दिया गया, बाद में उसे चार्ज दिया गया डेक्कन के साइड हैदराबाद में. As a Mughal Subedar, all financial and military powers were conferred in his hands. Military और financial power उसके हाथ में थी. He was responsible for managing the executive and judicial departments. The title of Nizamul was conferred upon him by the Farrukhsiyar. निज़ामुल जो टाइटल है फर्रुखशाह की तरफ से दिया गया विद द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल अथॉरिटी. लेकिन जैसे जैसे मुग़ल अथॉरिटी के डिक्लाइन होने लगी, आसिफ जाह एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724. ही फाउंडेड द आसिफ जाही डायनेस्टी. उन्होंने आसिफ जाही डायनेस्टी की नींव डाली. एंड हिज सक्सेसर वेयर नोन एज द निज़ाम्स. और हैदराबाद में कई निज़ाम्स उसके बाद आए और उन्होंने राज किया. ओके, तो इस तरह से हैदराबाद में एस्टेब्लिशमेंट हुआ निज़ाम शासन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू नो अबाउट द मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम? आपको क्या मतलब मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था? तो मुग़लों का तो हमने पता है कि हाँ, ये रेवेन्यू सिस्टम इनके जो डेवलपमेंट होती है वो रेवेन्यू पर ही थी. जो उनके राज्य की किंगडम की मिलिट्री की जो सैलरी दी जाती थी वो जो राज्य से रेवेन्यू आती थी उससे दी जाती थी. तो मराठों का उसी तरह से रेवेन्यू सिस्टम था. अब वो क्या था? लेट्स सी. द मराठा लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. जो 2 भाग में मराठा लैंड को डिवाइड कर दिया गया. एक स्वराज्य अंडर मराठा करोड़ जो कि मराठा कंट्रोल में था, एंड अदर वाज द मुगलई. मुगलई नॉट डायरेक्टली
अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास बट अंडर देयर अथॉरिटी। मतलब यहाँ पर दो भाग में बांट दिया गया लैंड को, मराठा लैंड को, एक स्वराज्य और दूसरा मुगलई। और स्वराज्य था डायरेक्ट मराठा कंट्रोल में था, लेकिन जो मुगलई था वो डायरेक्टरी कंट्रोल में नहीं था मराठों का, वो उनके अथॉरिटी के कंट्रोल में थी। ठीक है, तो अब क्या है, द असेसमेंट ऑफ लैंड वॉज डन रेगुलरली। जो असेसमेंट है लैंड का हमेशा लगातार करते थे, एंड लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड आफ्टर अ प्रॉपर सर्वे। और जो लैंड रेवेन्यू लगाई जाती थी एक प्रॉपर सर्वे के बाद किया जाता था। इट वॉज कंटिजेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड इट्स यील्ड। और ये देखा जाता है जो क्वालिटी ऑफ लैंड क्या है और उससे आने वाली उपज पर ही रेवेन्यू उस हिसाब से लगाया जाता था टैक्स। टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस वेयर लेविड ऑन द मुगलई लैंड्स। अब ये जो है मुगलई लैंड्स पर दो तरह के टैक्सेस चलते थे, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ वॉज, अब इसमें क्या होता था, चौथ में 1/4 ऑफ द यील्ड ऑफ द टेरिटरी। अब जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसका जो उपज है उसका 1/4 लिया जाता था एज अ रेवेन्यू। और सरदेशमुखी में क्या होता था, 1/10 ऑफ द यील्ड, जो उपज है उसके 1/10 ली जाते थे। ठीक है, और इन द स्वराज्य लैंड ईच फार्मर पे 2/5 ऑफ हिज प्रोड्यूस। और जो स्वराज्य लैंड होती थी उसमें जो प्रोड्यूस होता था उसका 2/5 फार्मर पे करता था टू द स्टेट एज अ टैक्स, आइदर इन कैश और इन टाइम, मतलब वस्तु के रूप में। ड्यूरिंग अ फेमाइन और अ बैड हार्वेस्ट, ग्रेन्स एंड मनी वेयर एडवांस टू द फार्मर्स। जब ऐसी एडवर्स नेचुरल कैलामिटी में, मतलब एडवर्स इफेक्ट होता था तो नेचर का, तो उस समय क्या होता था कि ग्रेन्स है और मनी एडवांस में फार्मर्स को दी जाती थी, एंड दे कुड रिपे द सेम इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स। और फिर उसको बाद में वो ईजी इंस्टॉलमेंट्स में वो फार्मर्स राज्य को फिर वापस करते थे। आई बात समझ में? मतलब जब उनका परेशानी का टाइम होता था, दे वर अनेबल टू पे द टैक्सेस, तो उस समय उनको मदद के तौर पर ये चीज़ दी जाती थी, लेकिन बाद में वो स्थिति ठीक हो जाने के बाद उसको रीपे कर देते थे इंस्टॉलमेंट में। तो इस तरह से मराठों का जो सिस्टम था, टैक्स सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस सी के here is, look at this picture, answer the following question. Whose statue is shown in the photograph? And question number 2, how did he create one of the strongest kingdom of the period under study? Now, let's see. It is the statue of Maharaja Ranjit Singh. After the death of Banda Bahadur, the Sikh organized themselves into 12 missals or groups, which were later organized by the Maharaja Ranjit Singh, seizing the Lahore in 1799 and the Amritsar in 1802. Ranjit Singh established one of the strongest kingdom of the period. Okay, now in this way your whole chapter has been over. You have to write question answer in your fair notebook and word meaning in your CW. Okay, thank you students, bye bye, take care.